زندگی میں پہلی دفعہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرا کوئی تجربہ نہیں اور میں تنہا بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہوں، بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ڈیوائس، بغیر آئی ٹی کے تجربے کے۔ میرے پاس کسی قسم کا آئی ٹی کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک موبائل اور ایک دو سادہ سی ایپ ہیں جن کی مدد سے میں یہ سارا ایپیسوڈ بنا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہر دیکھنے والا سبسکرائب کرے اور لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے اور نوٹیفیکیشن والی بیل کو پریس کریں، تو میں آگے کے لیے ایک مصمم ارادہ، ایک مضبوط ارادہ رکھتا ہوں کہ میں جلد ہی اس کہانی کو اینیمیٹڈ فلم کی شکل میں پیش کروں گا۔ اس کے لیے مجھے یا تو خود کوئی ایسی ٹیم رکھنی پڑے گی جن کی میں تنخواہیں اور سہولیات اور سارا خرچہ برداشت کر سکوں، یا پھر میں کسی ایسے ادارے سے رابطہ کروں گا جو مجھ سے پیسے لے کر اور میری مرضی کے مطابق بنا دے۔ اس اینیمیٹڈ فلم میں آپ کو جو میں مناظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں پوری تفصیل اور بہت دلچسپ انداز میں، جیسے آپ خود محسوس کریں گے، کیونکہ میں بہت ریئل قسم کے اینیمیٹڈ فلم بنانا چاہ رہا ہوں۔ ہر قسم کا موسم، منظر، چہروں کا امپریشن، چہرے، رستے، ماحول، ہر چیز اس میں کلیئر آپ کو محسوس بھی ہوگی اور نظر بھی آئے گی، اور آپ پوری شدت سے محسوس بھی کریں گے اور بہت دلچسپی اور مزے سے دیکھیں گے۔ آپ کو بہت دلچسپی ہوگی، کہ سنی سنائی چیز اور ہوتی ہے اور آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنا وہ اور چیز ہے۔ تو پھر یقین کریں کہ آپ کو اس کی ہر ایپیسوڈ کا اتنا زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ یہ جو تعارفی قسطیں ہیں، یہ چند تعارفی قسطیں اور بھی پیش کی جائیں گی، اس کے بعد اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ وہ کس قدر دلچسپ ہے اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آنے والے تمام منظرنامے پیش کروں گا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہانی ناولوں، ڈراموں، فلموں اور سے کس قدر ہٹ کر حقیقی ہے، یہاں تک کہ آپ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں خود پر بھی محسوس کریں گے۔ یہ بہت مختلف ہے اور بہت دلچسپ، ہزاروں موڑوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہزاروں واقعات، ہزاروں اتفاقات پیش آتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ زندگی میں رونما ہونے والی سچائیاں اور بالکل سچے واقعات جیسے آپ اس میں دیکھیں گے اور محسوس کریں گے، اور ان کے اثرات اور اثرات کے بعد مزید اثرات، یہ سب آپ کو اس میں دکھایا جائے گا۔ کافی حد تک موٹیویشنل بھی ہے۔ نوجوان نسل کو جرائم، منشیات اور خودکشی جیسے رجحانات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو مضبوط اور باعزم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ کہانی کا آغاز، ناصر آباد کی کہانی۔ آئیے آپ کی کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے کرسچن ملک میں مسلم اکثریتی صوبے ٹیرو اور اس کے مرکزی شہر ناصر آباد کی داستان ہے، جہاں طاقتور برادریوں کا گہرا اثر ہے۔ مرکزی کردار۔ اس کہانی کے ابتدائی مرکزی کرداروں میں دہشت بٹ، سعید دہشت بٹ، سکندر دہشت بٹ، رضیہ دہشت بٹ اور عائشہ سعید بٹ شامل ہیں۔ سعید کے 3 بچے، سعد سعید بٹ، حماد سعید بٹ اور تنویر سعید بٹ بھی کہانی کا حصہ ہیں۔ شروع میں کہانی کا فوکس دہشت بٹ، سعید بٹ، رضیہ بٹ اور سکندر بٹ کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر کئی کرداروں پر رہے گا، تاہم دھیرے دھیرے یہ فوکس سعد سعید بٹ اور ان کے بھائیوں پر منتقل ہو جائے گا، لیکن دہشت بٹ اور سعید بٹ بدستور اہم رہیں گے۔ کہانی میں نئے کردار بھی سامنے آئیں گے، کچھ طویل عرصے کے لیے، کچھ مختصر وقت کے لیے، یا کچھ کا کردار کسی خاص اچھے یا برے واقعے میں اہمیت حاصل کر لے گا۔ کچھ کردار وقت کے ساتھ منظر سے اوجھل بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح بیسیوں نئے کردار اپنی اچھی یا بری جگہ بنائیں گے۔ ناصر آباد کا جغرافیائی تعارف۔ ناصر آباد بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے، جسے دریائے گوٹو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ دریائے گوٹو کا مغربی کنارہ، یہ حصہ ناصر آباد کہلاتا ہے۔ دریائے گوٹو کا مشرقی کنارہ، یہ حصہ دریا کی مناسبت سے گوٹو شہر کہلاتا ہے۔
ताकतवर बिरादरियां। इस इलाके में वो बड़ी बिरादरियां मौजूद हैं जिनका सिक्का दरिया के दोनों तरफ यकसा चलता है और वो एक तवील अरसे से तमाम वसाइल और इख्तियारात पर काबिज हैं। ये वही बिरादरियां हैं जिनका तज़किरा आपने पिछली गुफ्तगू में किया था। अब कहानी का सफर आगे बढ़ाते हैं। टीरो, एक मुस्लिम जजीरा। आपने सूबा टीरो, खास तौर पर नासिराबाद और गोटो शहर के गिर्द बसने वाली बिरादरियों का एक मुफस्सल नक्शा पेश किया है जो उसकी पेचीदा समाजी और जुग्राफियाई साख्त को जाहिर करता है। ये मालूमात इस कहानी के लिए बहुत अहम बुनियाद फराहम करती हैं। शहर की बिरादरियों का जुग्राफिया और ताकत का तवाजुन। दरियाए गोटो जो नासिराबाद और गोटो शहर को तकसीम करता है, बिरादरियों के असर और रसूख के लिहाज से भी एक अहम सरहद है। मशरक़ी समत, रेता क्रिश्चन बिरादरी का राज। शहर की मशरक़ी सिमत में रेता क्रिश्चन बिरादरी का बिला शिरकत गैर तसल्लुत है। यहाँ कोई दूसरी खासकर मुस्लिम बिरादरियाँ न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से ये सिमत रेता बिरादरी के लिए नाकाबिले तस्खीर है। रेता बिरादरी का आगाज गोटो शहर से 23 किलोमीटर दौर मशरिक की जानिब नेशनल हाईवे के दोनों अतराफ देहात की शक्ल में होता है और उनकी सारी कुव्वत शहर की मशरक़ी सिमत में मरकूज है। मशरिक की जानिब सूबा टेरो का रकबा बहुत महदूद है, सिर्फ 32 किलोमीटर, जिसके बाद 100% क्रिश्चियन कम्युनिटी पर मुश्तमिल दूसरा सूबा शुरू हो जाता है। ये टेरो को एक मुस्लिम जजीरे की हैसियत देता है जो हर तरफ क्रिश्चियन समंदर से घिरा हुआ है। अगले दो सूबों के लोग तो क्रिश्चियनिटी के अलावा किसी और मजहब से वाकिफ ही नहीं। मगरिबी सोमत, मुस्लिम बिरादरियों का गढ़। उसके बिल्कुल बरक्स शहर की मगरिबी सिमत और शुमालन जनूबन 3 अतराफ रेता बिरादरी बराए नाम है और वहाँ सारा असर और रसूख मुस्लिम बिरादरियों के पास है। उन मुस्लिम बिरादरियों में कड़क बिरादरी सबसे नुमाया और अददी अक्सरियत में है, जो शहर की 45% आबादी पर मुश्तमिल है। बकिया 55% आबादी बीसियों दीगर बिरादरियों पर मुश्तमिल है। कड़क बिरादरी के अलावा ओची बिरादरी, मेहतानी बिरादरी, उजड़ बिरादरी, जुल्फकारी बिरादरी और 32 दीगर छोटी बड़ी बिरादरियां भी इस सिमत में मौजूद हैं। मुआशी तौर पर बाअसर और ज़री बिरादरियां। शहर में सबसे ज़्यादा मुआशी असर और रसूख रखने वाली बिरादरियों में कसोसी बिरादरी सरफहरिस्त है, जिसके बाद सादात बिरादरी आती है। ये दोनों खास तौर पर शहरी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और कारोबारी बिरादरियां हैं और उनका मरकज सिर्फ गोटो और नासिराबाद शहर है। देहात में उनका वजूद बिल्कुल नहीं पाया जाता। कुछ बिरादरियों ने सूबे के वसी ज़रई रकबों पर कब्जा कर रखा है। उनके तमाम देहात और इन मखसूस बिरादरियों पर मुश्तमिल कस्बे उनके रोबो ताकत का मजहर हैं। इन देहातों में एक ही बिरादरी का तमाम देहातों पर कब्जा और असर और रसूख है और वो हर गांव की आबादी के तनासुब में 17% या ज्यादा हैं। मगरिबी सिमत में ओची बिरादरी। मगरिबी सिमत में ही मेहतानी बिरादरी, जिनका शहर मेहतान है, जो इसी बिरादरी की निस्बत से मशहूर है। मेहतान शहर में मेहतानी कौम 60% है, जबकि इर्द गिर्द के देहात में उमूमन 90% या 100% है। शुमाल की जानिब 180 किलोमीटर दौर बट कौम का आगाज होता है। मशरिकी सिमत में रेता बिरादरी वसी और अरीज रकबों की इकलौती वारिस है, अगरचे बहुत महदूद सतह पर कुछ अजनबी क्रिश्चियन बिरादरियां भी उनके दरमियान मौजूद हैं। रेता बिरादरी में मजहबी तनव्वो। 28 रेता गांव क्रिश्चियन हैं, जबकि 8 रेता गांवों में मुस्लिम रेते भी मुश्तरका तौर पर रहते हैं। ये जाहिर करता है कि रेता बुनियादी तौर पर एक ही है, लेकिन बाज रेते मुसलमानों से ताल्लुकात और शहर में मुसलसल आमद और रफ्त और कारोबार की वजह से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए हैं। ये मुस्लिम रेते अब मशरिक की जानिब इन 8 देहातों में अपना मुनासिब वजूद रखते हैं। हाईवेज और सूबों का आपस में जुड़ाव। 2 बड़ी नेशनल हाईवेज सूबा टीरो को मुल्क के दीगर सूबों से जोड़ती हैं। उनमें से एक गोटो शहर के मशरिकी हाईवे है, जिस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का असर और रसूख शहर के बहुत करीब से शुरू हो जाता है, रेता बिरादरी की शक्ल में। आपने नासिराबाद और उसके गिरदो नवाह का एक बहुत ही तफसीली और जामे नक्शा खींच दिया है, जो इस कहानी के लिए एक मजबूत पस मंजर फराहम करता है। ताकतवर बिरादरियों का तसल्लुत। आपने जिन ताकतवर बिरादरियों का जिक्र किया है, वो बज़ाहिर मकामी सियासत और वसाइल पर गहरा असर रखती हैं। ये खास तौर पर उन शहरों में नुमायां हैं जहां उनका असर और रसूख दोनों तरफ यकसा है। रेते बिरादरी की ताकत व असर। रेता बिरादरी का असर और रसूख बिलाशुबा बहुत मजबूत नजर आता है। देहातों पर तसल्लुत। 36 देहात मुकम्मल तौर पर रेता बिरादरी के ज़ेरे असर हैं। आबादी में तनासुब। गांव की आबादी का 70% रेता बिरादरी पर मुश्तमिल है।
सियासी नुमाइंदगी, 4 गवर्नर, 1 कायम मकाम वजीर आलीज और हर असम्बली में MNA और MPA का ताल्लुक इसी बिरादरी से है। ये आदाद शुमार उनकी सियासी ताकत और असर व रसूख को वाज़े तौर पर जाहिर करते हैं। रेज़ा बिरादरी की अक़साम और इत्तेहाद। रेता बिरादरी मजहबी तौर पर तकसीम शुदा है, लेकिन उसके बावजूद उनमें इत्तेहाद नुमाया है। क्रिश्चियन रेता 28 गांव उनके ज़ेरे असर हैं। मुस्लिम रेता 8 गांव उनके ज़ेरे असर हैं। ये दिलचस्प बात है कि नासिराबाद शहर के मेंबर सूबाई असम्बली करीम मानतू के अलावा रेता बिरादरी की तमाम नुमाया शख्सियात का ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। इसके बावजूद मजहबी तकसीम के बावजूद उनका इत्तेहाद इस बिरादरी की ताकत का एक अहम पहलू है। दीगर बिरादरियां। रेता बिरादरी के अलावा आपने कुछ दीगर बिरादरियों का भी जिक्र किया है, जिनमें ओची, कसोसी, गड़क, सादात और कुछ आका दुका मजीद बिरादरियां शामिल हैं। उनका असर और रसूख रेता बिरादरी जितना वसी नहीं लगता, लेकिन वो मकामी सतह पर मौजूद हैं। रेता बिरादरी की सियासी शख्सियात बरा। रेता बिरादरी में साबिक निगरान वजीर आलीज के बेटे जॉन डियो माइकल चरेतू को सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। आपने ये भी बताया कि उन्हें अंडर वर्ल्ड डॉन भी कहा जाता है और उन पर 30 साल से जायद अरसे से मुख्तलिफ जराइम व जुल्म में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हैं। ये मालूमात जाहिर करती हैं कि उनका असर और रसूख न सिर्फ सियासी है, बल्कि इसके साथ कुछ मनफी पहलू भी जुड़े हुए हैं। ये सारी मालूमात मकामी सियासी और समाजी ढांचे की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती है।